Hello students. So continuing the same topic, now I am going to clear some more examples by applying the rules of debit and credit. First I have written here deposited cash in the bank. Deposited cash in the bank means you are depositing your cash in hand in the bank account. And since cash is going out from your asset, आपके हाथ में से कैश जा रहा है तो कैश क्या होएगा? क्रेडिट, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है. फाइन. सिमिलरली बैंक इज ऑल्सो योर एसेट, और बैंक में पैसा जा रहा है मतलब बैंक अकाउंट आपका बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, इट वुड बी डेबिटेड. फाइन. सिमिलरली हेयर कैश वुड बी क्रेडिटेड एंड बैंक वुड बी डेबिटेड. ठीक है. इन द सेम वे वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल. हेयर इट इज paid salary, and you all know that salary is your expense. Expenses are always debited if they are increasing, and we have paid the salary. और सैलरी आपने पे करी है, तो ये चीज मैंने कल भी आपको समझाई थी कि 80% ट्रांजेक्शन इज कवरेज ऑफ कैश इटसेल्फ. ठीक है. सो कैश इज गोइंग आउट. So it means cash is decreased. Here I have shown the decreased. So cash is your asset. Asset आपका decrease हो रहा है तो आपने क्या कर देना बेटा? Credit. And salary is your expense. Expense is increasing. आप उनको incur कर रहे हो, अपना खर्चा बढ़ा रहे हो, तो it would be debited. So in the same way you will judge two accounts in our transaction. What would be credited and what would be debited. Then coming to the next is received commission. So received commission means you are receiving sum of money, and it is always in the form of cash. And here, since you are receiving the cash, so commission is your income. Fine. So here two accounts would be cash and commission. Second account would be commission. This is the first account. This is the second account. Cash is your asset and commission is your income. And you are having increase in your cash, so it would be debited, and increase in your income. And we have read if there is more incomes, more credit. So commission would be credited here. Fine. Because expenses are always debited and incomes are always credited. In the same way we have paid rent by check. So paid rent by check means you have paid the expenses with the bank amount. और बेटा अगर आपने अपना कोई खर्चा चेक के थ्रू पे करा है तो ऑब्वियसली आपका बैंक बैलेंस कम होएगा, तो आपने बैंक अकाउंट में से कर देना है माइनस. मतलब बैंक अकाउंट इज योर एसेट और आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, यू विल क्रेडिट योर बैंक अकाउंट. एंड रेंट हेयर इज योर इनकम, सॉरी एक्सपेंस, क्योंकि हमने पे करा है, तो रेंट हमने पे करा, हमारा खर्चा है, तो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड सिंस इट इज इंक्रीज्ड. तो इसमें डेबिट क्या होएगा? रेंट, और क्रेडिट क्या होएगा? बैंक. इन द सेम वे आपने हर क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना सीखना है. ठीक है जी. बिकॉज अगर आपको डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंशिएशन आ गया, आपको सूटेबिलिटी पता चल गई कि क्या अकाउंट आपने डेबिट करना है, क्या अकाउंट आपने क्रेडिट करना है, ओनली देन यू कैन पास द जर्नल एंट्री विच इज आवर नेक्स्ट चैप्टर. फाइन. सो you will have to learn the application of the rules. Now I have one more transaction in this question. We have withdrew cash for personal use. The third one, withdrew cash for personal use means you are drawing the cash and cash is your asset. And what next account is involved here? Yes, drawings, because personal use word is there. So two accounts are cash account and drawings account. And since cash is decreasing, it is your asset, you will be credit cash. And drawings means your capital is decreasing, so you will take the capital account decreased and you will debit the capital. Fine. So here
we have involved drawings and cash. Drawings is the nature of capital because it is related with the proprietor. तो बेटा कोई भी ट्रांजैक्शन प्रोप्राइटर के साथ रिलेटेड है तो वो दो ही होंगी, या उसने कैपिटल मतलब पैसा डाला है बिजनेस में या निकाला है, ठीक है, या गुड्स निकाली है, तो वो मतलब एक कैपिटल होती है, एक ड्राइंग होती है, बट द नेचर ऑफ अकाउंट इज ऑलवेज योर कैपिटल अकाउंट. एंड द नेक्स्ट अकाउंट इज कैश. कैश इज योर एसेट. आपका एसेट बिजनेस में से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो सर्टनली यू विल क्रेडिट. और कैपिटल प्रोप्राइटर की कम हो रही है क्योंकि उसने अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए खर्चे पैसे, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट. नाउ नेक्स्ट इज विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. हेयर हमने बैंक में से पैसा विदड्रॉ कराया है और हमने अपने ऑफिस यूज के लिए करवाया. सो इट मीन्स टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, दैट इज कैश एंड बैंक. फाइन. सो कैश इज कमिंग इन योर हैंड. जब आप बैंक से पैसा निकलवाते हो तो ऑब्वियसली कैश आप लेके आते हो, तो कैश बढ़ रहा है तो कैश इज योर एसेट. अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट. सो कैश वुड बी डेबिटेड. नाउ बैंक इज द गिवर ऑफ द कैश, तो बैंक बैलेंस आपका कम हो गया. फाइन. बैंक अकाउंट में. ऑल राइट. सो बैंक अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड. नाउ नेक्स्ट इज received a check from debtor Sham. Here two accounts would be bank account and Sham account. So two accounts are bank account and Sham account. Now what is to be debited and what is to be credited depend upon the nature. You are receiving check. It means your bank balance will certainly raise by depositing the check. ठीक है, बिकॉज आपने वो चेक को बैंक में अल्टीमेटली डिपॉजिट कराना है तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा. तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, इट मीन्स कैश बैंक वुड बी डेबिटेड. एंड डेटर्स आर डिक्रीजिंग क्योंकि उस पर्सन ने आपको पैसे दे दिए हैं, कल को दोबारा नहीं देने, और डेटर आपके कम हो गए हैं. सो डेटर्स आर ऑल्सो योर एसेट, तो आपका शाम हो जाएगा क्रेडिट. हेयर कैश और चेक्स इन हैंड एसेट इंक्रीज्ड. Sham is your asset decreased because Sham is our debtor. Debtors are always our assets. Now deposited Sham's check next day. So here the thing is, कई बारी बेटा क्या होता है कि आज हमने रिसीव कर लिया, सपोज टुडे इज जून 3rd, तो मैंने क्या कर लिया कि जून में 3rd को मेरे को किसी ने चेक दिया और उस चेक को ना मैंने 1-2 दिन बाद या नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट कराने गई. तो इन दिनों में फर्क होने की वजह से क्या होता है कि हमारा बैंक में चेक लेट पहुंचता है. तो जब हम चेक रिसीव करते हैं तो हम चेक अकाउंट, चेक्स इन हैंड अकाउंट खोलते हैं या कैश अकाउंट खोलते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली जब आपका बैंक में चेक जाएगा ओनली देन यू विल ओपन द बैंक अकाउंट. सो इन 5th transaction, that is why they have written checks in hand. And when you deposit this Sham's check in the next day to the bank, only then checks in hand account would be closed. ठीक है. So this example would be more clear. Suppose Ram is the debtor. Ram आपका डेटर है और उसने आपको 10,000 रुपीज देने हैं. लेट्स सपोज उसने आपकी फर्म का चेक काट के ना आपको क्या कर दिया, 3rd जून को चेक दे दिया 10,000 का. आपने 4th में उस चेक को बैंक में भेजा, सेंड टू द बैंक. नाउ जो आपका पर्सन डेटर राम है उसने अपनी बुक में भी रिकॉर्ड करना है, प्रूफ रखना ना कि आपको चेक किस डेट को दिया, तो उसने 3rd जून रखना है. एंड ऑब्वियसली यू विल हैव टू रिकॉर्ड 3rd जून इटसेल्फ व्हेन राम हैज गिवन यू चेक. अब ये आप पे डिपेंड करता था कि आपने 3rd जून को भेजना है, 4th जून को भेजना है या 5th जून को भेजना है एंड सो ऑन. सो जब आपने भेजा है ओनली देन बैंक विल कलेक्ट्स द चेक एंड रेज योर बैलेंस. सो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम गैप की वजह से हम एक अकाउंट का नाम खोलते हैं, दैट इज चेक्स इन हैंड अकाउंट. सो चेक्स इन हैंड बाय द नेम इट इज क्लियर कि आपकी बुक में चेक आए हैं. सो चेक्स इन हैंड अकाउंट खोलना कब है, जब आपने चेक रिसीव करा बट बैंक में नहीं भेजा. और उसको क्लोज कब करना है, जब आपने उसको बैंक में भेज दिया.
So that is why when you have received check, तो checks in hand क्या होएगा? डेबिट. और जब आपने उसको बैंक में सेंड कर दिया तो दिस अकाउंट इज टू बी क्लोज्ड, तब क्या हो जाएगा? क्रेडिट. सो इन दिस वे यू आर टू सॉल्व द चेक ट्रांजेक्शन. अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने चेक्स इन हैंड अकाउंट खोलना है या नहीं? सो वेन एवर यू हैव ट्रांजेक्शन ऑफ रिसीव्ड चेक टू फ्रॉम एनी वन, यू विल रीड द क्वेश्चन अहेड. फाइन. सो आपने क्वेश्चन को आगे पढ़ लेना है कि उसी दिन चेक चला गया है या फिर उससे नेक्स्ट डे गया. अगर तो आपकी क्वेश्चन में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि सेंड टू द बैंक, जो जैसे हमारे क्वेश्चन में था शाम से चेक, इट मीन्स चेक्स इन हैंड अकाउंट वुड बी देयर. और अगर आपकी बुक में नहीं कुछ लिखा, ओनली चेक रिसीव्ड ट्रांजेक्शन इज देयर, 4 जून की नहीं है, इट मीन्स जब आपने रिसीव करा on that date you have deposited the check into the bank, तो तब आपने checks in hand account नहीं खोलना. So जब जहाँ पे चेक का डिफरेंस होएगा, ठीक है, only there you will have to open the checks in hand account, not in any other case. All right, now next is paid to creditor Mahesh by check. So here we are going to do the payment. So cash is going out, cash is your asset, asset is decreasing, so it would be credit. And Mahesh is your creditor, so it would be debited. आपकी liability कम हो रही है, तो आपने कैश नहीं चेक है तो बैंक वर्ड यूज करना है. फाइन. पेड सैलरी आई हैव क्लियर्ड. पेड रेंट बाय चेक, दिस इज ऑल्सो क्लियर. देन पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे कि सैलरी है, रेंट है, इन द सेम वे वी हैव इंटरेस्ट ऑन लोन एज एक्सपेंस. So expenses are always debited in case of increase, so interest on loan would be debited here. And since you are going to pay the interest, so cash is going to decrease in your business, so it would be credited. So in the same way you are to solve the questions.